variables or the values of some more constants. So if you have any doubt, you can share with me. Otherwise, I will start the solution of this numerical. But I want that if you have done anything and if you have understood something or if you have determined anything, you can share this information with me now. Yes, there is a question from Mirgya. Sir, can you explain preference volume and why we added it to sub volume? Okay, Mirgya. So let me show you 1 minute. So here, yeah. So did you see this? Can you see this slide, Mirgya? Can you see? Okay, just wait, it will come. Amir has written something that V2 is equal to. You are right. V1 is equal to Vs plus V2, but the value of V2 is not this. Value of V2 is 1.34. 1.34. No, actually, Amir, I had the answers from other students also. That Anurag has given me 10770. So, and I also have determined. Okay, you tell me what was the value of Vs, Amir? Tell me the value of Vs. Swept volume. Tell me the value of that is actually the 9425 liter. Okay. Then tell me the value of Vc. If you have determined Vc, what is the value of Vc? I don't know. Okay, let me write this one more time. Vc is equal to Vs 9425 upon 8 minus 1. So is it coming 157? Check. Is it coming 1570? Not 6, it's 7 actually. What am I neglecting? It's better that I should unmute you. Yes, Amir, tell me now. सर जो कंपैरिजन रेशियो है R वो V1 plus V2 by V2 था ना? V1 plus V2 by V2. V2 by V2. V1 plus V2 by V2. V1 upon V2 था कंप्रेशन रेशियो V1 upon V2. ओके. कंप्रेशन रेशियो तो यही होगा ना V1 upon V2. ये तो क्लियर है V1 upon V2. दैट्स ऑल. ये V1 है, ये V2 है. सर V1 को हम तो पूरा ले रहे हैं ना, VC plus VS. हाँ तो पूरा लिया मैंने. VC प्लस, तो इसलिए तो मैंने लिखा इसको V1 की जगह लिख दो VC प्लस VS. तो जब तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कंप्रेशन रेशियो ऐसे भी कर सकते हो, VC प्लस VS अपॉन V2. V2 VC है, ऐसे भी निकाल दो चाहे. ओके, फिर सर सही आ रहा है. फिर मैंने फिर यहाँ पे गड़बड़ कर दी. ठीक है.
अच्छा मृग्या, is that slide visible to you now? Okay, Mृग्या. So now see what is given here. So actually the question says swept volume. So as per the definition of the question, the swept volume is this. So I am just determining the swept volume Vs from the data itself, and it is actually pi by 4 d square L. So we can determine directly the swept volume from the data. Now from the diagram, you can also see if this volume is added to the swept volume, I can actually have V1. See, so that the same principle I have utilized here, that Vc plus Vs is equal to V1. Okay, and up to what point you have actually reduced the volume? Up to this. So I have taken swept volume and Vc is equal to V2 हो जाएगा. फिर जहां कंप्रेशन गया है तो मैंने वो V2 लिया है. ये मैंने डायग्राम से ही किया है और डायग्राम से ही सब कुछ मिल भी रहा है. तो जो फंडामेंटल्स हैं वो यहीं से ही मैंने अप्लाई किए हैं, फ्रॉम द सेम डायग्राम. अब इसमें आपके पास Vs भी है और टोटल वॉल्यूम में से Vs आ जाएगा. अब आप R को यूज करके Vc निकाल लो. तो Vc जो होगा V2 होगा. V2 आ रहा है 1346. ठीक है, थोड़ा जल्दी करो, ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है. V2 आ रहा है 1346, V1 आ रहा है 10766, जो मेरी कैलकुलेशंस हैं. अनुराग की भी शायद मैच कर रही हैं और चंद्रहास का भी कल आंसर मैच कर रहा था. तो अब आप इसमें से देखो, प्रोसेस 1 to 2 में 1 to 2 है, तो हमें क्या क्या चाहिए? मुझे T2 चाहिए और P2 चाहिए फिर 1 से 2 में, क्योंकि मुझे थर्मल एफिशिएंसी एंड वर्क डन निकालना है. सो आई नीड द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट ईच पॉइंट. सो फर्स्ट डिटरमाइन T2. T2 कितना आ रहा है? T2 सिंपल है, T1 है और V1 V2 मुझे दिया हुआ है, तो मैं इसी से कर लूंगा. गामा -1 होगा क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है. सो टेक गामा इज इक्वल टू 0.4, डिटरमाइन T2. And similarly, what will be P2? P2 will be P1, V1 by V2 गामा. ये गामा हो जाएगा. तो व्हाट इज P2? तो मैंने P2 T2 दोनों ही प्रोसेस से निकाल दिए. जैसा मुझे दिख रहा है ऐसा ही मैंने जस्ट सॉल्व कर दिया. So now you can tell me what is P2 and T2. Anyone else with the answers? And answers are actually, Amir has P2 18.38 है, ठीक है. T2 है 689, ठीक है, ठीक है, 689 केल्विन. यस. अब आप P2 T2 निकाल चुके हैं. अब आप T3 निकाल दीजिए, क्योंकि प्रोसेस है 2 to 3 भी जाना है अभी मुझे. 2 to 3, तो उसमें देखो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है. तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप फिर उससे निकाल दो, T by P इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो T3 अपॉन P3 इज इक्वल टू T2 अपॉन P2. तो इससे मेरे पास T3 आ जाएगा. सो T3 विल बी इक्वल टू आई थिंक 2250. ये सब का आना चाहिए. और V3 V2 के बराबर ही होगा. Am I right?
ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? V3 कैसे निकाला? देखो ना, आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है क्योंकि V3 V2 कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, 2 to 3 प्रोसेस आइसोचारिक है, आइसोचारिक है तो T by P से निकाल दो, इट्स वेरी इजी। तभी तो पॉसिबल है, V2 V3 कांस्टेंट होगा तभी पॉसिबल है ये, तो मैंने आइसोचारिक से निकाल दिया, T by P इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ डिटरमाइन V4, अब 4 पे निकालो। अनुराग T3 एंड P3, तो T3 निकाल दिया अनुराग मैंने, T3 है 2250 और P3 P3 एंड T3 बोथ आर अननोन सर। नहीं नहीं, इसमें इसमें एक मिनट, आप क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, P maximum is equal to P3 देख लेते हैं। The engine operated and heat addition at constant pressure continues for if the maximum cycle, हाँ maximum cycle pressure is actually the 60 bar, तो P3 मैक्सिमम पे है, साइकिल प्रेशर इज 60 बार, तो वो 60 बार होगा। तो ऐसे जाओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड होगा 2 to 3, तो मैक्सिमम प्रेशर यहां से मिलेगा, फिर ऐसे आओगे, फिर नीचे जाओगे, 1 to 2, 2 पे निकल गए, 3 पे भी प्रॉपर्टीज निकल गई। नाउ डिटरमाइन 4, 4 पे आओ। अब देखो इसमें क्वेश्चन को देख लो पहले, ही सेड द हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर कंटिन्यूज फॉर 4% ऑफ द स्ट्रोक, तो if maximum cycle pressure is 60 bar, make calculation. So heat addition continues till actually the 4 एक minute, the heat addition at constant pressure takes place for 4% of the stroke, तो मेरे पास मुझे V4 चाहिए, तो V4 क्या होगा, एक सेकेंड, ये यदि पीवी डायग्राम है, heat addition at constant pressure, तो अभी 2 to 3 प्रोसेस इज नॉट क्लियर। अब मैं पहले क्या करता हूँ, 2 to इसको मैं अप टू कहाँ तक लिया है, V4, तो V4 में आप जाएंगे तो V4 होना चाहिए V3 प्लस 4% ऑफ VS मेरे हिसाब से, क्योंकि what is happening here, we have V4 is equal to, yes V4 is equal to होगा V3 plus 4% of VS। हाँ, yes। Now look at the question, that the heat addition किया at constant pressure continues for 4% of the stroke, so if maximum cycle pressure is limited to 60 bar, तो मैंने जो heat addition किया है उसको दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं। yes we have a question one more sir, 2 to 3 प्रोसेस, अरे यार पीवी डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, आप 1 से 2 तक गए, फिर आप 2 to 3 में आपने कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोचारिक पे मैक्सिमम प्रेशर, वेट इट विल कम, ओके। सो मैं 1 to 2 गया, जिसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देख लो, सिलेंडर इज दिस, इंजन ऑपरेट्स एट कांस्टेंट प्रेशर, कंप्रेशन रेशियो ऑफ 8 एंड हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर continues for 4% of the stroke,
तो हीट एडिशन तो आइसोबारिक पे चाहिए, ठीक है, और आपके पास साइकिल में थर्ड प्रोसेस है जिसको आपको आइसोचारिक लेना होगा, तो मैंने इसको कांस्टेंट वॉल्यूम लेना पड़ेगा, फिर तभी तो आप जाके हीट एडिशन करोगे। पहले तो आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तब आप हीट एडिशन करोगे। तो हीट एडिशन के लिए जो V4 आएगा दैट विल बी एट कांस्टेंट प्रेशर अप टू 4% ऑफ स्ट्रोक, तो दैट विल बी V4। देन अब आपकी साइकिल में फिर से फॉल होगा, ठीक है। ये मैंने अब तक एक्सप्लेन किया है, ये जिसको भी क्लियर नहीं हो प्लीज लेट मी नो। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हैं, 2 to 3 एंड 3 to 4, तो ये जो कंडीशन है दैट इज 4। फिर आप नीचे आओगे 4 to 5 में, तो 4 to 5 पे यहाँ आ जाओ। यहाँ तक आई हैव एक्सप्लेन द साइकिल। Yes, Anurag, that is okay. I'll see the answers later, but you just understand the fundamental first. That the question itself says that heat is added at constant pressure continues 4% of the stroke. It means कि वॉल्यूम को और बढ़ाया गया, तो V4 क्या होगा? V4 आपके पास हो जाएगा V3 प्लस 4% ऑफ VS, ये मैंने बोला है। तो मेरे पास V4 आ गया और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हुआ है यहाँ पर दिस इज Q, तो मैंने ऐसे V4 निकाल लिया। हाँ, V4 सही है, 1722 ही आएगा, बट ये आपको समझ में आना चाहिए सबको हो क्या रहा है। देन 4 से 5 में फिर आप नीचे आ जाओ, कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक ही ले लो एक्सपेंशन को, और देन इसमें से फिर आप V4 T5 निकाल दो। ठीक है, क्लियर है। तो V4 आ रहा है 17 मेरा आ रहा है 1722.8, तो ठीक है, ये सब का आ रहा है। और बिकॉज 3 to 4 प्रोसेस इज आइसोबारिक है, तो आप अब T अपॉन V से कर दो, T अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो T4 कितना आएगा? V4 अपॉन V3, इंटू T3, यहां से T4 आएगा। If you have not understood anything so far, please let me know, because ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे और मेरे क्विज में भी आने वाले। दिस कंप्रेशन इन्वॉल्व्स सम थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल्स एंड प्रोसेसेस। तो प्रोसेस के साथ आपको खेलना है और आपको समझना है कि प्रॉपर्टीज कैसे निकालनी है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हर पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही करता जा रहा हूं और अकॉर्डिंगली डेटा के साथ आप देखते जाओ कि क्या हो रहा है। तो 2 to 3 आइसोचारिक है, 3 to 4 आइसोबारिक है, तो मैंने वही प्रिंसिपल अप्लाई करके T3 V3 T4 V4 P4 सब निकाल दिया। T4 आ रहा है, अनुराग का आंसर है 2880। हाँ सही है ये, ठीक है, तो सही आंसर ये आंसर ठीक है। तो दैट विल बी T4 बिकॉज ऑफ द आइसोबारिक कंडीशन। तो साइकिल आप पहले केयरफुली देख लो, फिर नाउ दोज हु हैव अंडरस्टूड दे कैन नाउ डिटरमाइन T5। और T5 जो है वो आइसेंट्रोपिक है, तो आइसेंट्रोपिक वाला कंप्रेशन एक्सपेंशन लगाओ, वो क्या होगा? T4 V4 अपॉन V5 रेज टू द पावर गामा -1। ठीक है, और देखो V5 क्या है, यहां से केयरफुली देख लो, V5 इज इक्वल टू एक्चुअली V1, तो ये हो जाएगा T4 V4 अपॉन V1
गामा -1। ठीक है, तो यहां से T5 निकालो। व्हाट विल बी T5? डिटरमाइन T5। What is T5? V4 we know, V1 we know. Determine T5. आमिर का आ रहा है 1383 T5। हाँ सही है ये। सही है। नाउ अब आपके पास सब कुछ तो है। T5 आ रहा है 1383। यस ओके। हाँ आमिर, यस सर। क्लियर है अब तुम्हें सब साइकिल पूरा? यस सर, बस थोड़ा इसमें सा भी अभी। डाउट हो तो नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सबसे, बिकॉज दीज न्यूमेरिकल्स बहुत फंडामेंटल है, और ऐसी न्यूमेरिकल्स मैंने अपने एग्जाम में भी रखे हैं और क्विज में भी। तो आपको कहीं पे भी डाउट है अभी भी पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सर मैंने कहाँ पे कौन सा प्रोसेस अज्यूम करना है वो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कि एज्यूम करना ही नहीं है। अब इसमें सब तो लिखा है, देखो हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर दिया है, तो ऑफ कोर्स जब मैं 60 बार पे चला गया मैक्सिमम प्रेशर पे, उसके बाद मुझे कांस्टेंट प्रेशर पे ही जाना पड़ेगा, विच इज 4%। वीएस तक जाना है, तो मुझे दिख रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे ही तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो मैंने वैसे ही किया है। और मैक्सिमम प्रेशर देखो, मैक्सिमम प्रेशर 60 बार दिया था, तो एक हिंट यहां से ये मिला कि जब आपने, हाँ मैं आपको हिंट दे देता हूं, जब आपने V2 निकाल, सॉरी P2 निकाला था ना, P2, तो क्या P2 60 बार था? ये बताओ पहले मुझे, P2 60 बार था? नहीं था ना? हाँ नहीं था। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि P2 60 बार नहीं था, इसका मतलब देयर इज वन मोर प्रेशर विच इज हायर देन P2, तो वो P3 ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर तक जाना है, तो मैक्सिमम प्रेशर जा रहा है, और बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा फिर। तो इस तरह से साइकिल डेवलप करते जाओ। उसके बाद उसने फिर हिंट दिया कि आप कांस्टेंट प्रेशर पे ही रहेंगे, तो V4 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर से निकल जाएगा। V3 2 एंड 3 आइसोचारिक, 3 to 4 आइसोबारिक, 4 to 5 1 to 2 सब आइसेंट्रोपिक है। वही मैंने फंडामेंटल अप्लाई करे यहाँ पे, और सब सब पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यू विल ऑलवेज बी हैविंग विद यू, तो वो ऐसे निकालते जाओ। एनीबडी एल्स, if there is any more doubt? ठीक है, तो अब आपके पास जो न्यूमेरिकल में सब आ गया, तो नाउ डिटरमाइन दी थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, तो थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको वर्क डन चाहिए और हीट सप्लाइड चाहिए, तभी आप थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे। तो थर्मल एफिशिएंसी जैसे मैंने पहले किया था ना, वर्क डन चाहिए मुझे और हीट सप्लाइड चाहिए। तो वर्क डन, अब आप देख लो कि वर्क डन आप कैसे निकालोगे। वर्क डन ऐसे भी निकाल सकते हो, हीट एडिड माइनस हीट रिजेक्टेड, तो ऐसे निकाल दो। वर्क डन क्या होगा, हीट, जो मैंने पहले भी करवाया आपको, हीट एडिड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट रिजेक्ट कहां पे होगा, 5 to 1 में। साइकिल पूरा हो गया, जो जो मुझे हिंट मिल रहा है ना फ्रॉम द डेटा, वही मैं ड्रॉ करता जा रहा हूं। तो इसका मतलब इफ हीट इज रिजेक्टेड इन 5 to 1, इट मींस हीट इज एडेड इन 2 to 3 एंड 3 to 4। तो यहां पर दो जगह कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हुआ है, तब आपने एक्सपेंशन किया, देन आपने हीट रिजेक्ट किया। सो T5 की वैल्यू आ रही है, T5 इज, जिंदल T5 आ रहा है 1384, जो सबने निकाला है, आमिर सबका 1384 आ रहा है। जस्ट चेक योर कैलकुलेशंस इफ देयर इज एनी मिस्टेक।
सो नाउ अब डिटरमाइन करो अब वर्क डन। तो वर्क डन के लिए मुझे हीट एडिड चाहिए, आई नीड हीट एडिशन। तो अब आपको साइकिल ही मैं फिर से दिखा देता हूं, तो आपको साइकिल से ही पता चल जाएगा दैट दिस विल बी हीट एडिशन एरिया। यहीं पे तो आप हीट ऐड करोगे तभी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जहां पर आपने हीट ऐड किया है वो निकाल लो। दिस 223 इज आइसोचारिक, तो हीट एडिशन कितना होगा, सीवी, सीवी T3 माइनस T2। ठीक है, और सिमिलरली प्लस में आएगा सीपी, सीपी सॉरी सीपी T4 माइनस T3। तो ये दोनों को जोड़ दो, देन यू विल बी एबल टू हैव हीट एडिड। तो हीट एडिशन निकल जाएगा। तो मेरा जो हीट एडिशन आएगा वो क्या होगा, CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3। ये हीट एडिशन होगा। और हीट रिजेक्टेड कितना होगा, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होगा, CV T5 माइनस T1, दैट इज हीट रिजेक्टेड। सारी वैल्यूज आपके पास हैं टेम्परेचर की, जस्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो जो CV और CP है वो मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में लिखवाया था, लास्ट जो न्यूमेरिकल हुआ था। अदरवाइज आप लिख लो फिर से, CV इज इक्वल टू 0.718 and CP is equal to 1.005 और इनकी यूनिट है किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो यहां से अब आप वर्क डन निकाल दो। Now determine the work done. Tell me the value of work done. Is that clear to everyone? If it is not clear, please let me know. I can again repeat. From the cycle itself, I can determine the work done. Work done होगा heat addition minus heat rejection. तो heat यहाँ पर ऐड हुआ है 2 to 3 and 3 to 4 में, रिजेक्ट कहाँ पे हुआ है 5 to 1 में। तो दोनों का डिफरेंस ले लो, आपके पास हीट एडिशन आ जाएगा, वो वर्क डन आ जाएगा। So what is the value of work done? वर्क डन आ रहा है 976। व्हाट्स द यूनिट मृग्या? द यूनिट इज एक्चुअली किलोजूल पर केजी। यूनिट जरूर लिखा करो, 975.5 किलोजूल पर केजी। तो वर्क डन आ गया। अब आपके पास वर्क डन है, आपके पास हीट सप्लाइड भी है, हीट सप्लाइड से इसे डिवाइड कर दो। हीट सप्लाइड क्या था वो निकाल लो। मेरा आंसर आ रहा है 1754 हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड वही है जो आपने भी यूज करा है ना वर्क डन निकालने में। दोनों को डिवाइड करो, एफिशिएंसी बताओ। माइन आंसर इज 55.6। Is that answer matching with your answers?
work done is 61.84. Amir, other answers are 975.5. Work done is equal to, हाँ efficiency ठीक है मेरे, 55.6, बट I'll check. हाँ चेक कर लो, क्योंकि CV मैंने लिखा भी था बार बार, CV T3 माइनस T2 पर केजी में होगा ये सब. CP, हाँ अनुराग ठीक है, T4 माइनस T3 माइनस CV T5 minus T1 will be the answer for work done. That will be the work done. Heat addition minus heat rejection. ठीक है, तो अब हमारे पास मोस्टली आंसर आ गए. तो एफिशिएंसी निकल गया. नाउ ही इज आस्किंग वर्क डन पर साइकिल. तो अब आप वर्क डन पर साइकिल निकाल दो. वर्क डन ऑलरेडी मेरे पास है, इट इज 975.5 किलो जूल पर केजी, बट वो पर साइकिल पूछ रहा है, तो डिटरमाइन द केजी वैल्यू. केजी निकाल लो. m इज इक्वल टू, ये मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, P1 V1 अपॉन RT1. R की वैल्यू क्या होगी, CP बाई CV. तो मुझे बताओ अब कितना आ रहा है. m निकाल लो, P1 V1 अपॉन RT1. और वर्क डन को मल्टीप्लाई कर दो. टेल मी द वैल्यू ऑफ वर्क डन. तो वर्क डन आपके पास 975.5 है. m बताओ कितना आ रहा है. P1 कितना है आपके पास, डेटा देख लो. अनुराग का आंसर आ रहा है 250 पॉइंट, नहीं अनुराग गलत आ रहा है. P1 कितना लिया आपने, 1 इंटू 10⁻⁵ होगा, क्योंकि डेटा 1 बार में दिया है. 1 बार को आप यूज करो 10⁻⁵. और V1 क्या होगा, 1076 इंटू 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब है, अपॉन RT1 में 287 R हो जाएगा इंटू 300. इससे देखो कितना आंसर आ रहा है वर्क डन का. यूनिट थोड़े से ना आप रेलेवेंट यूज करो, यूनिट में गलती कर रहे हो आप लोग. आया. एनीवन एल्स विद द आंसर, अनुराग. हाँ ये सही है, 12.12. तो आई थिंक ये क्लियर होगा आप सबको. हाँ जिंदल, 0.125 नहीं, 12 ठीक है, आपने मेगा में निकाल दिया, ठीक है. 12.5 सही है. अब आपके पास वर्क डन आ गया. नाउ टेल मी दी, हाँ तो इसको m को मल्टीप्लाई कर दो वर्क डन से मृग्या, पर साइकिल निकल जाएगा आपके पास आंसर. अब आप यहां से निकाल दो मीन प्रेशर. तो मीन प्रेशर होता है वर्क डन अपॉन
आपके पास जो ये दिया ना स्वेप्ट वॉल्यूम वीएस, तो कितना वो चला है स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। अब इससे आपके पास मीन प्रेशर निकल जाएगा। तो प्रेशर आ रहा है मेरा, मीन देख लो, चेक कर लो, 12.95 bar. That is the mean pressure in the cycle. So these are the answers for the first question. Please, these type of questions जो day after tomorrow quiz है ना, उसमें I can tell you there are couple of questions based on the gas compression, and they are open book questions. They will take time, so you have to solve everything, and you have to very careful while solving these numericals in quiz. Then you have to give me the answer. तो इसलिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस आपके हाथ पे होना चाहिए, यूनिट आपको एकदम समझ में आना चाहिए, क्या पूछा है, कैसे साइकिल बनानी है। वो मैं हर क्वेश्चन, ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया था आपको, वेयर आई डेवलप दी साइकिल बेस्ड ऑन दी डेटा, टुडे आई अगेन डेवलप दी साइकिल। तो डेटा में एक ट्रिक था जहां पे उसने 4% वीएस दिया हुआ था, सो दैट वाज आल्सो डिस्कस्ड, ठीक है। इज दैट क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन, सो दैट आई कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबका ये आंसर आ रहा है। तो लास्ट में मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल, मीन इफेक्टिव प्रेशर मिल गया, मैं पहले ही भी बता चुका हूं, जो सबसे पहले क्वेश्चन हुआ था ना, जो सबसे मीन प्रेशर होगा इनटू डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन, तभी तो मीन इफेक्टिव निकलेगा। और मीन इफेक्टिव के लिए जो डेल वी है दैट इज द टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम, तो मैंने उसको डब्ल्यू मीन से डिवाइड कर दिया, जो वर्क डन पर साइकिल आ रहा है ना उसको डब्ल्यू डेल टी वी, क्योंकि डेल वी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू पीवी तो होता है, बट आप निकालना है। तो एवरेज के लिए यू हैव टू डिटरमाइन दी डेल वी फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट, वो है आपके पास स्वेप्ट वॉल्यूम वी एस, कितना स्वेप किया, तो उसी से आपके पास एवरेज वैल्यू आएगी प्रेशर की। तो वही फंडामेंटल मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। Now come to the second part of the second numerical. We have this is also very good numerical. Now this question again I would request everyone and Amir also कि आप पहले इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, फिर इसमें समझो कि क्या बन रहा है, साइकिल कैसे बनाई जाएगी, कैसे हम निकालेंगे। कंप्रेशन इंजन है ये, और ये कंप्रेशन बेस्ड इंजन है, तो इग्निशन इंजन है, कंप्रेशन इसमें हो रहा है, तो आपको देखना है कि क्या क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, then try to understand what is asked to determine. आमिर ये क्वेश्चन आपको क्लियरली बता देगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना फर्स्ट पार्ट में, यहां पर वो डिटेल में लिखा हुआ भी है। देखो आप क्वेश्चन में पढ़ो, द एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक कंप्रेशन को हम आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, थ्रू ए वॉल्यूम रेशियो ऑफ 16, इट मींस हमें 1 से 2 तक जाना है, वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन विच इज आइसेंट्रोपिक। उसके बाद उसने साफ साफ बोला है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट को ऐड किया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो साइकिल कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, ये रहा। तो 1 to 2 भी मिल गया,
देन 2 to 3 तक आपने उसने हीट ऐड किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसने साफ बोला है। देन उसने क्या किया, हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल द प्रेशर इज 70 बार। तो प्रेशर मिल गया, P3 मिल गया, 70 बार है, ये मिल गया। कुछ डेटा मिलेगा, कुछ निकालेंगे। तो फर्दर हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी कांस्टेंट प्रेशर फिर हीट किया गया उसको, तो वो V4 होगा, वो 4 पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट मिल गए मुझे, यहां भी हीट ऐड हुआ है और यहां पर भी हीट ऐड हुआ है। तो ये जाके 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4 तक गया। देन हाँ सॉरी, and then expanded adiabatically to initial volume, वो उसको एक्सपेंशन दिया, जो मैंने पहले ड्रॉ किया था वो यहाँ पे भी ड्रॉ होगा सेम। तो यहाँ तक मैं आ गया, और वो भी एडियाबेटिकली है, तो वो भी आइसेंट्रोपिक ही होगा। तो गामा इज इक्वल टू 1.4 ऑटोमेटिकली पता चल गया। देन फाइनली हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रिटर्न इट्स इनिशियल स्टेट। अब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है, तो बन गई ना साइकिल। नाउ साइकिल इज कंप्लीटेड। This is 1 to 2, sorry, this is 5 to 1, and this is फिर से हम इनिशियल स्टेज पे आ गए। तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 पूरा तो एक्सप्लेन किया गया है। तो वो बोल रहा है हाँ, हीट ट्रांसफर, ओके, डिटरमाइन द प्रेशर्स एंड टेम्परेचर एट कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द साइकिल। हर पॉइंट पे आपको प्रेशर टेम्परेचर बताना है, पहला क्वेश्चन तो ये है। देन साइकिल की एफिशिएंसी बताओ एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आई थिंक मुझे ये क्वेश्चन पहले कराना था आपको, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन कम दिया हुआ था। एनीवे अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हाँ ठीक है आमिर, आई गॉट योर पॉइंट। तो वो ठीक है, अभी आपको ज्यादा समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। अब यहां से भी देख लो कि वही सेम क्वेश्चन है, जस्ट मोर एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन को, एंड देन आपको डिफरेंट चीजें निकालनी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट नाउ कि जल्द कर दो जल्दी से इसको। अब आपको हर प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू पता है, तो अब मुझे जल्दी जल्दी आंसर बता दो एंड इट विल बी फिनिश सून। जिसको कोई क्वेश्चन में लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको, फिर मुझे बताओ। जैसे पहले सॉल्व किया था ऐसे धीरे धीरे मुझे बताते रहो वैल्यूज क्या क्या है। टेल मी व्हाट इज T2। V1 कितना आ रहा है, 9.9186 मीटर क्यूब। V1 तो आई थिंक T2 है 970। हाँ T2 सही है, T2 970 है। और जो P2 है वो कैसे निकाला है आंशी तुमने, 3 बार। अच्छा P2 खाली 3 बार आ रहा है, गलत आ रहा है। P2 आ रहा है अरुणिमा का 48.5। हाँ ये सही है अरुणिमा। अंशी चेक योर आंसर फॉर P2, दिस इज P2 इज 48.5 बार। ठीक है, T2 आ गया, P2 आ गया। अभी T3 निकाल दो, व्हाट इज T3। हाँ जिंदल ठीक है, व्हाट इज T3। T3 आ रहा है 1400, सही है, दिस इज आल्सो करेक्ट।
नेक्स्ट निकालो, फिर T4 निकालो. व्हाट इज T4? टेल मी T4. T4 आ रहा है 1707. सही है मृग्या? सही है. T3 सही है जिंदल. डिटरमाइन T4 जिंदल. एवरीवन, आमिर, डिटरमाइन T4. डिटरमाइन T4, T5. हमें तुम्हारा आंसर हमेशा ही गलत आता है यार. T3 आ रहा है 9431 केल्विन. नहीं, T3 है 1400 केल्विन. ये तो बहुत आसान है. T3 इज इक्वल टू T2 P3 बाई P2 होगा. सिंपल सी बात है. आइसोचारिक प्रोसेस है तो T3 ऐसे निकलेगा. डिटरमाइन T4 आ रहा है. T4 निकालो सब लोग. Mragya has given the answer, but I want that you should determine the T4. सही है अनुराग. 1707. तो मेरा T4 आ रहा है 1707 केल्विन. ठीक है. T5 बताओ. व्हाट इज T5? डिटरमाइन T5. हाँ, यही यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कैलकुलेट V4 सर. यस. इज देयर एनीवन हु हैज डिटरमाइंड V4? किसी ने V4 निकाला? V4 कैसे निकलेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो बताओ ना V4 कैसे निकलेगा. कैलकुलेटिंग. अनुराग इज कैलकुलेटिंग. जस्ट वेट ए मोमेंट. T4 आ रहा है 69,995 cc. अच्छा, ये V4 है आपका. तो मुझे ये जानना है कि फिर V1 कितना है. हमारा V4 तो V1 से ज्यादा नहीं हो सकता. तो मेरा V1 आ रहा है, यदि मैं P1 V1 बाई RT1 से V1 निकालूंगा. लेट अस वेट मृग्या. others are also determining V4. हाँ, V1 है 918400. ठीक है मृग्या, सही है. V4 is coming 69,000. हाँ, जिंदल हैज रिटन समथिंग. आ गया. कैसे आ गया? कैसे निकालना है सर? अच्छा, कैसे निकालना है सर? ओके. देखो, आपको मैं एक हिंट देता हूँ. फिर मैं कल इस पे डिबेट फिर से चालू करूंगा. एंड देन टुमारो आई थिंक आई विल आल्सो स्टार्ट द डीसल्फराइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक. तो मैं आपको हिंट देता हूँ. जिंदल, एक हिंट है क्वेश्चन में. आई थिंक वहां से शायद आप निकाल लो. हीट इज एडेड टू एक्सपेंडेंस. हीट इज
हाँ, if the heat transferred to air at constant pressure is equal to that transferred at constant volume. हाँ, तो यही मैंने बोलना था। यहाँ पे एक हिंट है कि आपके पास जो हीट ट्रांसफर है ना एयर में एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू दी हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से एक हिंट मिलेगा आपको, यहां से आप V4 शायद निकाल पाओ। अनुराग हैज डिटरमाइंड 69,000, या अनुराग सही है ये। तो आई विल स्टॉप हियर। आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज कंप्लीट दी एंटायर न्यूमेरिकल बिकॉज, और फिर मैं कल आपको आंसर मैच करा दूंगा और मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको भेज दूंगा। इफ यू वांट टुमारो प्लीज लेट मी नो। तो पहले हम ये क्वेश्चन पूरा करेंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप करके पूरा कर लीजिए और कल मैं इसको फिर से डिस्कस करूंगा। हाँ, T5 इज आल्सो करेक्ट मृग्या। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अब जो पूछा गया है सब कुछ निकाल लो एंड कल बस मेरे से मैच करवाना, आई वुड रिक्वेस्ट, है ना। एंड देन फिर मैं डीसल्फराइजेशन कल चालू करना चाहता हूं, तो इसलिए इसको यहीं पे मैं रोक रहा हूं। कल फिर हम यहीं से डिबेट चालू करेंगे, ठीक है। बट दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज गो थ्रू बोथ द न्यूमेरिकल्स एंड ट्राई टू सॉल्व, और कल कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वो दीज न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम और क्विज में भी मिलेंगे। ठीक है, बाय एवरीवन।